Good morning, all. Today we will discuss question number 19 to make more practice regarding the making of P&L appropriation account and partners capital account. So here in the question, P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40. On 1st April 2014, their capital were P rupees 5 lakh, Q 3 lakh. During the year ended 31st March 2015, they earned a profit of 7 lakh 60. This is net profit. The terms of partnership are: number 1, interest on capital is to be charged at the rate of 8% per annum. P will get commission at the rate of 3% on turnover. Turnover here means sale. Q will get a salary of rupees 5,000 per month. We will multiply this amount with 12 to get annual salary. Q will get commission of 5% on profit after deducting interest, salary and commission, including his own commission. So Q को commission मिलेगा इस net profit में से. आप interest on capital, P's commission, Q's salary माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 5% ऑफ दैट, बट द फॉर्मूला विल बी R upon 100 प्लस R, बिकॉज उसने क्या बोला है, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. फिफ्थ, P इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज़ ऑफ हिज पर्सनल प्रीमाइस बाय द फर्म. P जो है उसको 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली रेंट भी मिलेगा. रेंट हेयर, रेंट टू P इज़ अ चार्ज. इट विल बी शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि यहाँ पे इस प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हुआ है. पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर P 40,000, Q 30,000. दिस इज एनुअल ड्राइंग. टर्नओवर फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 20 लाख. दिस इज सेल, जिसके ऊपर आप जो है P का कमीशन निकालेंगे. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. सो let's solve the question. I had already solved. First I will go for preparing the working notes. So first here is profit sharing ratio. It is given as 60:40. मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. It has been divided by the table of 20. Then the standard form of ratio here is P3 Q2. Now interest on capital. So this is P's interest on capital, this is Q's interest on capital. Here the capital, opening capital of P 5 lakh into 8% interest has been provided, so multiply by 8 upon 100 for the whole year. No change in the capital is here. So on 5,000, 5 lakh 8%, that is 40,000, and here for Q 3 lakh into 8 upon 100, that is 24,000. So this is the interest of P and Q on their capital. Now next here is in the third working note, P's commission, that is 3% on turnover. Turnover is given in the question, that is 20 lakh, यानी कि sale, तो 3% on turnover, that is 60,000. Now Q's salary. Q's salary here is 5,000 per month. So annual salary here is multiplied by 12, that is 60,000. Q will get a salary 60,000 for the year. Now P's rent on his premise, जो उसने फर्म को अपना बिल्डिंग किराए पे दे रखा है, उस पर 20,000 per month. So annual rent will be 2,40,000. So now we will go for getting Q's commission. Q's commission क्या है, नेट प्रॉफिट में से उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, P's कमीशन, Q's सैलरी, एंड ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है 7,60,000, इसमें से अभी P का रेंट जो था वो एडजस्ट नहीं हो रखा था, तो इसलिए हम उसमें से P के रेंट को भी माइनस करेंगे. सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में जो है ये प्रॉफिट गिवन है आपको, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल ले लिया. देन P का कमीशन हमने कैलकुलेट करा, Q की सैलरी कैलकुलेट करा, और ये जो है वो P का रेंट माइनस कर दिया. तो क्योंकि उसने बोला था कि
इट विल ऑल्सो इंक्लूड क्यूज़ रेंट, क्यूज़ कमीशन, तो इसलिए फॉर्मूला बना R/100 प्लस R, राइट। तो हमने इस अमाउंट को एडजस्ट करा, इट हैज़ बिकम 3,36,000 इंटू 5/105 एंड क्यूज़ कमीशन हेयर इज़ 16,000. So these are the working, मैंने पहले वर्किंग आपके बना दिए. Now here P&L appropriation account. So क्योंकि इस प्रॉफिट में से आपने नेट प्रॉफिट में से रेंट जो पी का था उसको एडजस्ट नहीं करा था, तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट नहीं बनाया. आपके दो तरीके हैं, या आप इस अमाउंट को P&L में शो कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी नेट प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें से इस रेंट की अमाउंट को यहाँ पे माइनस करके नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो निकाल सकते हैं. मैंने ऐसे ही करा है. दो तरीके हैं. P&L एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाइए, वहाँ रेंट की अमाउंट को डेबिट साइड पे शो करिए और नेट प्रॉफिट निकालिए जो P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होना है. नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए और जो गिवन प्रॉफिट है उसमें से रेंट को माइनस करके नेट प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होना है उसको निकाल लीजिए. देन आई हैड पोस्टेड हेयर interest on capital, this is Q's, this is P's, this is Q, sum total here, again salary, commission, this is P, this is Q, grand total over here. रेंट विल नॉट कम हेयर, रेंट हमेशा P&L में आता है जो कि मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है. ना द बैलेंसिंग फिगर हेयर इज़ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल. क्वेश्चन साइलेंट था कैपिटल की नेचर के रिगार्डिंग कि वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो ये फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा, इसलिए प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी गिवन है जो कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्किंग नोट में कन्वर्ट करी थी. सो हेयर नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज़ 3,20,000. मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको रेशो के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्किंग नोट बना के शो करा है. सो पीज़ शेयर इज़ 1,92,000, क्यू शेयर इज़ 1,28,000. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट हेयर इज़ कैपिटल अकाउंट. सो ब्रॉट डाउन बैलेंस इज़ गिवन 5 lakh, 3 lakh. By interest I had transferred, salary I had transferred, commission I had transferred, net divisible profit I had transferred here. Now one thing more, drawing appropriation में नहीं होती. क्वेश्चन में ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग आपको गिवन है, वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी. इट हैज़ बीन डेबिटेड. लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो हमारी लास्ट आइटम आ जाएगी कैरी डाउन फिगर. पहले मैंने इधर का टोटल करा, उसको यहाँ पे रखा, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करा, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. इस अमाउंट में से इसको माइनस करा, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.